नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सो दिस इज a second class of free competitive exam for postgraduate and PhD entrance examination. So in our first class, we have discussed about cell, what is cell, the history of cell. Then we have discussed about the types of cell and biochemical organization of cell, where the chemical bonds play an important role to maintain the molecular and then compound structure. We have discussed about important inorganic compounds and their characteristics. We have discussed about the organic compound and its type and the important organic compound. No, now in our second class we'll discuss about colloids. Now, what is a colloids? Okay. Now, in this figure, ये फिगर में आप देख सकते हो, here three different type of solution can be seen. Okay, this is a true solution, this is a colloid, and third one is suspension. Now all the three solution have two component, one is solute and another one is solvent. Okay, now in case of true solution, you will see the size of an solute particle will be less than 1 nanometer. Okay, and in case of colloid, the size of an solute is from 1 nanometer to 1 micrometer. And in case of suspension, it will be more than 1 micrometer. So whenever the size of a solute is less than 1 nanometer, then it will dissolve uh, completely in a solvent. And when it is more than 1 micrometer, then it will not dissolve in solvent and it will settle down in the bottom and it will produce precipitate PPT. Okay, but the particle of a solute in colloid is very specific because it is not that much smaller that it will dissolve in the solvent, and its size is not that much bigger that it will settle at the bottom, so it will remain suspended in the solvent. Okay, and the solute particle generally they can be a proteins, it can be a fats, it can be a nucleic acid, and different type of solutes can be seen. Okay, so because of this nature, this colloid uh, are very dense, and just like a milk, it can be a fork, cheese, white egg white. So these are some example of colloid where you will see their texture is very thick, and sometime you will see a gel like structure whenever the temperature become very low. Okay, so this is the characteristics of colloid. Okay, so first thing you have to know that the size of the colloid will be range from 1 nanometer to 1 micrometer. Okay, now nature of colloid, the component of colloid, it is made up of two heterogeneous component. Okay, both the component are different in nature. One component is known as disperse or discontinuous phase. Basically, it comprises of macromolecules, solid like protein, nucleic acid, liquids, and oily fats. Okay, this the dispersed particle of the discontinuous phase are called micelles. So basically, whenever the solute of an colloid they found in an solvent, they may form a spherical ball-like structure. Okay, here the solute component will held together, where it kept the hydrophobic particle inside, and in the surface area you will see a hydrophilic component of an solute. In this way, the micelle spherical ball is formed in a solvent. Okay, there we call it as a micelle. Okay, now this dispersed phase, this macromolecule, they suspended in a solvent, and that solvent is known as dispersion or continuous phase. So it is the medium in which insoluble, which is not soluble in the solvent, insoluble material of colloidal size are dispersed, and the particle of the dispersion phase are called intermicelle particle, and the particle they are known as intermicelle particle. Whatever the particle is present between the micelles, they are known as intermicelle particle, or you simply you can say solvent. Okay, okay. Now if you see the protoplasm of our cell,
it have a colloidal nature. Okay, and it was first uh, proposed by Fishers in the year 1894 and Hardy in the year 1899. Okay, so why we call our protoplasm or cytoplasm of our cell as a missile? Because it shows the property of colloids. First, uh, they have a electrical property. Okay, they have a electrical property. They can conduct electricity. They can conduct electricity, and the component basically. What are the component of a protoplasma? If we consider the if we consider the protoplasma of our cell, which is 95% water, 95% water, and in 95% water you will see a proteins, you will see a proteins, larger proteins, you will see a droplet of fats. So these are a particle or a solute particle of an colloid. Okay, so basically this solute particle, they show Brownian movement. Okay, this protein particle they use to move in a random direction in the influence of the solvent molecule. Now, solvent molecule is made up of a water molecule. This water molecule also move and it will strike the solute particle. It may be a protein, it can be a fat. So, whenever it strike the solute particle, then it will show a random movement, and this random movement vibration is known as Brownian movement. Okay, and next, they show a Tyndall phenomenon. Whenever you kept a torchlight and you put the torchlight in front of cell, then in the influence of light, you will see the movement of a particle. Just like in a room, if you on the torchlight, so in a path of light, you will see a small dust particle. It will move. Okay, and it will make the light path visible. It is very uh, visible whenever in a room, if a dust particle is there, then the path of light will be very visible. But when you switch on the torch light in a clear water, there you will not see the path of a light. Okay, this is the main difference. This is the main difference because in a water, water is considered as a true solution. Whatever the solid will be there, it will be dissolved. So it will not show Brownian movement, and the particle will be uh, fully dissolved in a solvent. Okay, so that is why in a pure water, true solution, the path of light will not be determined. But in case of a room which is full of a dust, when you switch on the torch light, then the path of light will be visible because of the dust particle in the room, and this phenomenon is known as Tyndall phenomenon. And last one is Sol and gel nature. Now, colloidal have a one very nice property that in the influence of temperature, it may change its nature. Its nature is actually a dynamic. It may change in the influence of temperature. Whenever the temperature is high, the colloidal solution will show liquid characteristic. Okay. Whenever the temperature is high, the colloidal solution will show liquid characteristic. But whenever temperature is low, this liquid will converted into a gel, which is a semi-solid structure. Okay, this is a characteristic of our protoplasm. Okay, now cell is a very miniature thing. It can't be observed with our eye. So there must be an instrument which we can use and observe it, and we can do their study. Okay, so for that we have to study the techniques in cell biology where different types of instrument is developed for the study of forms and the structure of cells. ओके, सेल्स के फॉर्म्स और स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ए इंस्ट्रूमेंट इज डेवलप known as microscope. Now this microscope can, what can it do? It can magnify the image of very miniature, very microscopic uh, thing into a larger image. Okay, this is the power of microscope. Now, this modern technology have two type of microscope. One is known as bright field microscope, and another one is electron microscope. Okay, both the microscope
both the microscope are used to magnify the image of an microscopic object. Okay. Now the microscope is based on a three important aspects. So these three important aspects is very important because if these three important aspect is good, then we can consider the microscope as a good. Okay, what are these three important aspects? One is magnification. What do you mean by magnification? The function of magnifying lens system is to increase the apparent angle sustained at the eye by the object within the microscopic field. This phenomenon known as magnification. Okay. So basically, in a microscope, there will be a use of a lens. So basically, whenever you observe an object which is very microscopic, to see the object, you will use a lens. You will use a lens. So whenever you use a lens, so in front of an lens, a image will form. Okay, if an object make an angle, something x angle. Okay, so if this lens can make a bigger angle with an object, that means that means it can magnify more. Okay, so basically, uh, here what we are trying to say is that whenever lens make a larger cone with the image, that means it have a larger magnification. Okay, so for that uh, for that magnification, you can calculate the magnification with a simple formula where the size of the retinal image with the instrument. That means whenever you see the microscopic object with instrument, that size divided by the size of an image with uneyed with अनएडेड आई. ठीक है सर. ठीक है. सो जब भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो इंस्ट्रूमेंट से, उसका साइज विद द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग द माइक्रोस्कोप, तो आप ये डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा, दैट विल बी द मैग्निफिकेशन. ओके. नेक्स्ट इज ए रिजोल्विंग पावर. तो कोई भी माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर अच्छा है या खराब है, इसे हम कह सकते हैं इफ ए माइक्रोस्कोप कैन distinguish very closely placed points. अगर कोई एक माइक्रोस्कोप का पावर ऐसा नहीं है कि ये एकदम पास के दो डॉट को रिजोल्व नहीं कर पाए, और इसे ऐसा होता है कि कोई भी कैमरा में अगर मेगापिक्सल अच्छा ना हो, तो आप अगर फोटो खींचोगे तो फोटो खींचने के बाद तो क्या होगा कि ये दो डॉट एक सेम डॉट की तरह दिखेगा, बिकॉज ये ब्लर हो जाएगा. तो ये ब्लर हो जाएगा, ये भी ब्लर हो जाएगा. ब्लर हो जाने की वजह से क्या होगा, ये दोनों डॉट्स एक सिंपल डॉट की तरह, लंबा डॉट की तरह दिखेगा. ओके. सो इससे हम क्या कह सकते हैं कि वो कैमरा का रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है. उसी प्रकार से माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन जब अच्छा होगा, तभी ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर होगा, अदरवाइज ब्लरी इमेज होगा. ठीक है. so the microscope must possess the resolving power sufficient to permit the perception of closely adjacent point in the image as separate object. ये दोनों पॉइंट को सेपरेट ऑब्जेक्ट जैसा दिखाना पड़ता है माइक्रोस्कोप को, तभी ही रिजॉल्विंग पावर अच्छा है, ऐसा हम मानते हैं. नेक्स्ट, इन सम केसेस you can see that the color of cell is colorless, even the background is colorless. बैकग्राउंड भी कलरलेस है और सेल भी कलरलेस है. इन दैट केस आप क्या करते हो, सेल में आप स्टेनिंग करते हो. स्टेनिंग करने की वजह से सेल का कलर चेंज हो जाता है. देन यू कैन ऑब्जर्व द सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप. ओके. सो बेसिकली माइक्रोस्कोप का कैपेसिटी ये होना चाहिए कि वो जो सैंपल है और उसके सराउंडिंग के बीच में एक कंट्रास्ट होना चाहिए. ये दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम सैंपल को देख सकते हैं. सो इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस कंट्रास्ट is not that much good, but
there are many different microscope like फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो इस प्रकार का माइक्रोस्कोप भी मिलता है जहां पर विदाउट यूजिंग द स्टेनिंग यू कैन कंट्रास्ट बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सेल। ओके, सो माइक्रोस्कोप का जितना अच्छा कंट्रास्ट होगा उतना ही अच्छा होगा वो माइक्रोस्कोप, ठीक है। नाउ यू कैन मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ एन कंपाउंड। मतलब कि कोई भी कंपाउंड का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर रेजोल्यूशन कम हुआ, लो हुआ, दैट मीन्स वो अच्छा माइक्रोस्कोप है। मतलब लो रेजोल्यूशन मतलब कि उतना ही कम डिस्टेंस के पॉइंट को वो रिजोल्व कर सकता है। तो इसका मतलब ये अगर आप रेजोल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसे कैलकुलेट कर सकते हो 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय एन ए। सो लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ कंसीडर करते हैं हम। और एन ए हो गया आपका न्यूमेरिकल एपरेचर। न्यूमेरिकल एपरेचर मतलब ये जो भी हम लेंस यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये लेंस का जो एरिया है जो कि लाइट गैदर कर सकता है उसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एपरेचर। ओके, तो लाइट गैदर करने का कैपेसिटी भी डिपेंड करता है आपका मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन मीडिया कौन से मीडिया में है उसके ऊपर में डिपेंड करके उसका न्यूमेरिकल एपरेचर को हम कंसीडर कर सकते हैं कौन से मीडिया में है। प्लस जब भी लेंस के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है तो ये एक कोन बनाता है, ठीक है। ये कोन बनाता है, ये कोन का जो आधा एंगल है, हाफ हाफ उसे हम कहते हैं अल्फा, ठीक है। हम क्या कहते हैं अल्फा कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम साइन अल्फा। तो बेसिकली दिस इज अ साइन अल्फा एंड बाय यूजिंग दिस टू पैरामीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन अल्फा यू कैन डिटरमाइन द न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ एन लेंस। ओके, और जितना ज्यादा न्यूमेरिकल एपरेचर होगा उतना ही कम रेजोल्यूशन होगा और उतना ही अच्छा आपका माइक्रोस्कोप होगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। कितने प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं। सो सबसे पहले सॉरी, जेनसन, ओके, जेनसन ब्रदर 1590 में सिंपल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जहां पर सिंगल एक लेंस था। हाँ, और उसे सिंपली एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई, जैसे कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, उसी प्रकार से जेनसन ब्रदर ने वैसा एक माइक्रोस्कोप बनाया था जहां पर सिंगल लेंस था और उससे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखते थे। बट लेटर ऑन इन 1665 रॉबर्ट हुक ने मल्टीपल लेंस यूज करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को, जो कि हमने हमारे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। कॉर्क स्लाइस में सेल को ऑब्जर्व करके सेल बताया कि हमारे बॉडी में सेल पाया जाता है, ठीक है। Now this compound microscope, it is the primary tool can be found in all the laboratory of college, university, जहाँ पर आप देख सकते हो हर जगह में ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहेगा। बेसिकली दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट: द कंडेंसर लेंस सिस्टम, द ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम एंड द ओकुलर लेंस सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली कंडेंसर लेंस सिस्टम यहाँ में रहता है। मेन इसका काम यही होता है, जो सोर्स से लाइट आता है, ये बाहर से आपका सनलाइट को भी आप यूज कर सकते हो मिरर से, और डायरेक्ट लाइट को ऐसे इंसिडेंट कर सकते हो, या यहाँ पर डायरेक्ट लाइट भी लगा हो सकता है। तो दिस कंडेंसर विल gather the light and it will directed the light to the sample found in the stage. Okay, now in the stage sample will be present. Now this light will strike the sample and it will go to the ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम में तीन लेंस लगे होते हैं। पहला लेंस लो पावर लेंस कहते हैं, दूसरा हाई पावर लेंस कहते हैं, और तीसरा हम ऑयल इमर्शन लेंस कहते हैं। लो पावर लेंस का पावर होता है 10x, हाई का 40x, 100, ऑयल इमर्शन लेंस का 100x। सो बेसिकली ये x का मतलब हो गया गुना, मल्टीप्लाई, 10 गुना बढ़ा करके दिखाता है इमेज को, 40 गुना बढ़ा करके दिखाता है, और 100 गुना बढ़ा करके दिखाता है। और ये सब लेंस का फोकल लेंथ होता है 16 mm, 4 mm एंड 1.6 mm रेस्पेक्टिवली सबके, ठीक है। सो जब भी आप
मैग्नीफिकेशन बढ़ाओगे तब उसके बाद आपको स्टेज को लेंस के पास लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज फोकल लेंथ कम हो जाता है कि नहीं? ठीक है। नाउ यू कैन रोटेट दिस लेंस। अपने हाथों से आप लेंस को रोटेट करके अपने इच्छा से लेंस यूज कर सकते हो। लो भी यूज कर सकते हो, हाई भी यूज कर सकते हो, या ऑयल इमर्शन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली ऑयल यूज कर, सैंपल के ऊपर ऑयल डालकर तब देखना पड़ता है, अदरवाइज आप देख नहीं पाओगे। ओके। देन आप इमेज देखने के लिए अपने आँख को यहाँ पर लगाते हो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक लेंस रहता है। इस लेंस को कहते हैं हम ओकुलर लेंस या आईपीस लेंस। ठीक है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव लेंस एक इमेज बनाता है। मैं यहाँ में दिखा देता हूँ। कंसीडर कीजिए, ये सैंपल है। सैंपल के नीचे से जो लाइट आ रहा है, कंडेंसर, कंडेंसर जो लाइट डायरेक्ट करता है सैंपल में, ये सैंपल जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस में। ऑब्जेक्टिव लेंस से एक इमेज बनता है इन फ्रंट ऑफ द आईपीस लेंस, जो जहां पर आप आंख लगाते हो। और ये जो इमेज, रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड रियल इमेज, ये इन्वर्टेड रियल इमेज का फिर से ये जो आईपीस लेंस है, ये आईपीस लेंस इमेज बनाता है यहाँ पर और भी मैग्नीफाई करके। ठीक है। तो बेसिकली आप देखो कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अगर आप 10x यूज करते हो तो 10x मतलब कि ये ऑब्जेक्ट का 10 गुना यही होता है। ठीक है। 10 गुना अगर इसका साइज करो तो ये इतना होगा। तब उसके बाद आईपीस लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो भी अलग होता है। वो 5x से लेकर 20x तक होता है। ठीक है। तो 5x से 20x ये तब तो जो रियल इमेज बनता है, ये रियल इमेज का भी फिर से एक इमेज बनाता है। और ये जो इमेज बनता है उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया 5x और इसका हो गया 10x। तो 5 इंटू 10, 50x मैग्निफिकेशन होगा ये इमेज का। मतलब कि ये 50 गुना, 50 मल्टीप्लाई ऑफ द साइज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं। ओके। तो बेसिकली ओकुलर लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बनाए हुए इमेज को फिर से मैग्नीफाई करता है, जिसका अपना मैग्निफिकेशन 5x से 20x तक हो सकता है। ओके। नाउ the magnification of a microscope is determined by the multiply of the objective magnification to ocular magnification। जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओकुलर लेंस के मैग्निफिकेशन के बाद, तभी ही टोटल मैग्निफिकेशन निकलेगा। ओके। और रेजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना आता है? 0.2 माइक्रोन। ठीक है। तो ये चीज एंट्रेंस बेस है, ये सब याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना रेजोल्यूशन होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अ डिफरेंट माइक्रोस्कोप, जिसे हम कहते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। नाउ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इट वर्क on a principle where change of phase of light is determined. Okay, इसे समझते पहले। The principle of phase contrast microscope is changing a phase of light. Light passing through an object undergo retardation or phase change, which is used to observe living cell and tissue without staining. तो बेसिकली फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप उस प्रकार के सैंपल को देखने के लिए यूज होता है जिसे स्टेनिंग हम नहीं करते। ठीक है, स्टेनिंग हम नहीं करते। अगर आप स्टेनिंग करोगे तो ये सेल मर जाएगा। तो आप बिना सेल को मारे सेल के अंदर के कंपोनेंट को किस प्रकार देखोगे? बाय यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली यहाँ में प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी आप सेल में आप लाइट देते हो, ठीक है, अभी सेल तो ऐसा नहीं है कि सारी जगह पे आपका सेल ऑर्गेनेलिज है। कोई कोई जगह में ऐसा है कि सेल ऑर्गेनिज नहीं भी रह सकता, खाली जगह है, सिर्फ वाटर है। तो ये लाइट क्या होगा, बहुत सारे लाइट जो सोर्स से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पकड़ लो, लाइट का सोर्स है। ये लाइट का सोर्स से लाइट आएगा, पास होके जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के लाइट, अभी ऊपर की तरफ में तो सब लाइट रे सेम ही होगा, सेम ही सोर्स से निकला। बट जब ये स्पेसिमेन को टकराएगा, टकराने के बाद दो प्रकार के लाइट निकलेंगे। एक ऐसा लाइट जो कि डिफ्रेक्टेड नहीं है, कोई प्रकार का सेल ऑर्गेनेलिज में उसका स्ट्राइकिंग नहीं हुआ। बट एक ऐसा भी लाइट होगा जो
स्ट्राइकिंग होके डिफ्रेक्टेड होगा। ठीक है, सो दो प्रकार के लाइट हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो फेज है और इसका जो फेज है, दोनों में डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस होता है फेज का, इसे कैलकुलेट करके एक इमेज बनता है, जहाँ पर जो लाइट कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं लगता वो ब्राइट हो जाता है पूरा, और जिसमें लगता है वो डार्क हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, आपका सराउंडिंग और सेल कंपोनेंट के बीच में एक कंट्रास्ट बन जाता है, एक डार्क एक लाइट। उसके वजह से हम वो स्पेसिमेन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का, जहाँ पर ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के नीचे में एक कंडेंसर एन्युलस है। तो ये कंडेंसर एन्युलस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, देख सकते हो। ये ब्लैक रीजन ओपेक रीजन है, ये खाली है। ये जो व्हाइट रीजन है ये खाली है। तो बेसिकली इसके ऊपर में लाइट सोर्स रहता है, और जब भी लाइट आता है ना, ये लाइट को क्या करता है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है लाइट के स्ट्रक्चर को। बिकॉज बीच में भी ओपेक रीजन है, साइड में भी ओपेक है, सिर्फ साइड ही साइड में लाइट है। तो इसी की वजह से जो लाइट निकलता है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सिलिंड्रिकल पाथ ही फॉलो करता है। ऐसे मत सोचिए कि ये लेंस से इसका पाथ चेंज हुआ और यहाँ में जाके मिल गया, वैसा नहीं। ये इतने ही पास होता है, बट फिर भी ये सिलिंड्रिकल फॉर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये है सोर्स ऑफ लाइट, उसके नीचे है कंडेंसर एन्युलस, जो कि लाइट को सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये जाके स्पेसिमेन में टकराता है। अभी सेम चीज मैंने ये जो यहाँ बोला, सेम चीज यहाँ भी होता है कि यहाँ से दो प्रकार के लाइट निकलते हैं। एक कहते हैं हम डायरेक्ट लाइट, जहाँ जो कि कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस या कंपोनेंट से टकराता नहीं है, और एक डिफ्रेक्टेड लाइट होता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइट निकल के आते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होते हैं। पास होने के बाद यहाँ पर एक और प्लेट होता है, फेस प्लेट। ठीक है, तो ये फेस प्लेट में क्या होता है आपका, यहाँ पर खाली जगह होते हैं। ये खाली जगह में से वही लाइट पास हो सकता है जो कि डायरेक्ट लाइट हो, जो किसी भी सेल ऑर्गेनेल से टकराया ना हो। मैंने क्या बताया था कि ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहेगा जो डायरेक्ट लाइट है। ठीक है, बट जो लाइट सैंपल के साथ लगेगा वो डिफ्रेक्ट हो जाएगा, मतलब कि वो अपने रास्ते से निकल के आ जाएगा और थोड़ा सा डिले भी हो जाएगा। पहला तो वो सिलिंड्रिकल जो पाथ है उसे फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज वो किसी चीज से टकरा के अपने रास्ते से बिछड़ गया है, रास्ते से निकल के आ गया है, तो वो उसका रास्ता भी चेंज होगा, प्लस वो डिले भी होगा। ठीक है, बट जो लाइट लगा नहीं है वो अपना सिलिंड्रिकल फॉर्म फॉलो करेगा। नाउ दिस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइट विच इज डायरेक्ट लाइट, वो क्या होगा, ये फेस प्लेट के सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से निकल के आ जाएगा। ठीक है, बट जो डिफ्रेक्टेड लाइट है, वो जो डिफ्रेक्टेड लाइट है वो ये फेस प्लेट के बीच में आके टकराएगा, जो कि क्या करेगा ना, ये जो लाइट डिले हो गया उसे और डिले कर देगा। और ये डिले को हम कहते हैं 90 डिग्री शिफ्ट। हम्म, और डिले कर देने की वजह से आपका जो डायरेक्टेड लाइट वो तो आगे चला गया, और ये नीचे में और डिले हो गया। डिले होने के बाद में जाकर ये डायरेक्ट लाइट और ये फेस प्लेट से जो टकरा के नीचे में डिफ्रेक्टेड लाइट आएगा, दोनों जाके मिल जाते हैं। अभी मिल जाने के बाद अभी एक चीज याद रखिए दोस्तों, डायरेक्ट लाइट का एक पर्टिकुलर आपका फेज होगा, और जो डिफ्रेक्टेड लाइट होगा उसका पर्टिकुलर एक फेज होगा। ये दोनों लाइट जब एक साथ मिल जाते हैं, मिल जाने के बाद मिल जाने का इन सिंपल वे में बताता हूँ, ये वेवलेंथ का ये टिप और ये जो फेज इसका चेंज हुआ, इसका जो वेवलेंथ का टिप, ये दोनों का लोकेशन अलग है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। दोनों में इंटरफेरेंस होता है, और ये इंटरफेरेंस आपका
कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और इसी की वजह से जो इमेज बनता है वो हाईली कंट्रास्टेड इमेज होता है। मतलब कि दो प्रकार के लाइट के वजह से जो इमेज बनेगा, जो इमेज डिफ्रेक्टेड है वो डार्क हो सकता है, जो लाइट आपका डायरेक्ट होगा वो एकदम लाइट होगा। उसके वजह से हमें हमें जो इमेज दिखेगा वो आपका हाईली कंट्रास्टेड दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। So in this microscope, it detect a small continuous change in refractive index. So basically, differential interference contrast microscope में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसीडर करते हैं। और बेसिकली ये भी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है, सेम टू सेम, बट ये 3D इमेज बनाने में सहाय करता है। तो पहला बात, ये विदाउट स्टेनिंग सैंपल को दिखाता है। सेकेंड बात, ये सैंपल को 3D स्ट्रक्चर दिखाता है। बट फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है वो 2 डायमेंशन बनता है, और यहाँ पर 3 डायमेंशन बनता है। ठीक है, नाउ ये किस प्रकार से बनता है मैं बताता हूँ। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है मैं बताता हूँ। आप कंसीडर कीजिए, ये है आपका लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स के ऊपर में एक होता है पोलराइजर, जो कि लाइट को पोलराइज कर देता है, दो वेवलेंथ ऑफ लाइट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और ये प्रिज्म क्या करता है, ये प्रिज्म पोलराइजर के ऊपर में एक प्रिज्म होता है जिसे हम कहते हैं नोमार्स्की प्रिज्म। ये नोमार्स्की प्रिज्म क्या करता है, ये दो वेवलेंथ ऑफ लाइट को अलग अलग रास्ते में पास कर देता है, और ये जाके कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर इसे स्पेसिमेन की तरफ भेज देता है। एक चीज याद रखिए, ये दोनों लाइट का पाथ डिफरेंट है। तो स्पेसिमेन में जो सैंपल रहेगा, तो उसका जो स्ट्राइकिंग होगा उसके डिफरेंट लोकेशन में होगा। तो डिफरेंट लोकेशन में जब स्ट्राइकिंग होता है, तो फॉर एग्जांपल ये है एक्स रे, ये हो गया वाई रे, सिर्फ नाम बताया हूं मैं हाइपोथेटिकल। तो एक्स रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और वाई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, फेज डिफरेंस कुछ और होगा, और वाई का फेज डिफरेंस कुछ और होगा। और एक चीज, एक्स जो लोकेशन में आपका स्ट्राइक करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग होगा, जो लोकेशन में ये इंसिडेंट होगा। ये ये इसी कारण की वजह से जो फेज डिफरेंस ये दोनों लाइट में होता है, ये फिर से ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगा। इसके बाद फिर से और एक नोमार्स्की प्रिज्म है जो कि ये दो पोलराइज्ड लाइट को मिला देता है। सॉरी, ओके, दो लाइट को मिला देता है, और मिलाने के वजह से हमें पता है यहाँ में भी आपका फेज डिफरेंस होगा, और फेज डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। और यहाँ पर दो दो अलग अलग इमेज का स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। और ये दोनों ही इमेज जब दोनों मिल जाएंगे तो हमें 3D स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये दोनों इमेज जब मिल जाएंगे तो हमें 3D स्ट्रक्चर दिखेगा, बिकॉज ऑफ द टू पोलराइज लाइट। ठीक है, अब ये दो पोलराइज लाइट का इमेज अलग अलग है, बट जब सुपर इम्पोज होगा, सुपर इम्पोज होने के बाद हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। एक लाइट के वजह से एक इमेज बना दिस, एक इमेज बना पैर का दिस, और एक लाइट की वजह से एक इमेज बना, पकड़ लीजिए, दिस। तो फाइनल ये दोनों को अगर सुपर इम्पोज करो, तो पैर का जो इमेज होगा ना, ऐसा प्लस ऐसा, तो आप देख सकते हो इसका 3D स्ट्रक्चर बन गया, ये फ्रंट का और ये बैक का। ये दोनों को सुपर इम्पोज करने से हमें 3D स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, और यही है आपका
डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जहां पर हम देखते हैं कि दो पोलराइज लाइट का वजह से और जो इमेज फाइनल इमेज बनता है वो होता है 3D इमेज। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो इमेज बनता है उसमें सराउंडिंग पूरा ब्लैक होता है और सैंपल जो दिखने को हम देखना चाहते हैं वो पूरा ब्राइट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये किस प्रकार से होता है मैं बताता हूँ। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में डच फिजिसिस्ट फ्रिट्ज जेरिकी को नोबेल प्राइज मिला था 1953 में, टू डिस्कवर दिस फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। मतलब कि ये माइक्रोस्कोप को बनाने में उन्हें मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, सो डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, व्हेन लाइट स्ट्राइक ए स्मॉल ऑब्जेक्ट सम लाइट इज स्कैटर्ड मेकिंग द ऑब्जेक्ट appear luminous, thus visible against a dark background. This technique of dark field illumination also called ultra microscopy. Dark field illumination microscopy को हम ultra microscopy भी कहते हैं। तो ये टेक्निक को यूज करके आप बहुत छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में सहाय करेगा। ओके, और ये कुछ डिजीज को भी डिटेक्ट करने में सहाय करता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि सिफिलिस को भी डिटेक्ट करने में सहाय करता है। तो बेसिकली कैसे होता है मैं बता दूं, एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स के आगे एक फिल्टर होता है जिसे हम कहते हैं एन्यूलर फिल्टर। तो ये लाइट को फिल्टर करता है। तो बीच में एक ऑब्स्टेकल होता है जो कि लाइट को रोक देता है और उसके साइड में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। उसकी वजह से सिलेंड्रिकल लाइट स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होता है। और ये कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर ऐसा प्लेस करते हैं कि ये जो लाइट है इसे डायरेक्ट सैंपल से पास करते हैं। ठीक है, तो ये जब लाइट सैंपल से डायरेक्ट पास होगा, पास होने की वजह से कुछ कुछ लाइट ऐसे होते हैं जो सैंपल से पास नहीं होते, वो डायरेक्ट लेंस के बाहर चले जाएंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बाहर चले जाएंगे जो कि सैंपल को स्ट्राइक नहीं किया है। और कुछ कुछ लाइट ऐसे होते हैं जो सैंपल में स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के बाद याद रखिए दोस्तों, कोई भी लाइट कोई भी सैंपल को अगर स्ट्राइक किया है तो उसका पाथ सीधा नहीं रहेगा, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। और इस लाइट के चेंज ऑफ पाथ को हम कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। और ये लाइट के डिफ्रेक्शन की वजह से ये लेंस में चला जाएगा। देखिए, कंडेंसर लेंस का प्लेसमेंट इस प्रकार से किया गया है कि जो भी लाइट अगर सैंपल में ना लगे तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस के बाहर चले जाएगा, अगर लगे तो लेंस में जाएगा। इस प्रकार से कंडेंसर लेंस को प्लेस किया गया है। तो बेसिकली डिफ्रेक्टेड लाइट ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगा और इमेज बनेगा सिर्फ उस रीजन का जहां पर सैंपल है। एज ए रिजल्ट सैंपल पूरा ब्राइट होता है और सराउंडिंग पूरा डार्क होता है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट हो गया आपका अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोपी। तो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है मैं बता दूं। अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोपी का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वाई, बिकॉज अल्ट्रा वायलेट का जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। इसी की वजह से अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोपी का रेजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, और इसे यूज करते हैं बहुत मिनिएचर और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो माइक्रोस्कोप कैसा होता है मैं बता दूं। यहाँ पर आपको यूवी लाइट सोर्स एक मिलेगा। यहाँ से यूवी लाइट निकलता है ऐसा। इट विल स्ट्राइक द लाइट सोर्स बीम कंबाइनर। ये क्या करता है, यूवी लाइट को बेंड करके डायरेक्ट आपके यूवी ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ भेज देता है। ये यूवी ऑब्जेक्टिव लेंस को पार करके यहाँ पे स्पेसिमेन रखा होता है, इसे स्ट्राइक करके फिर से वापस जाता है, सीधा सीधी वापस जाएगा। इस वक्त लाइट सोर्स बीम कॉम्बाइनर इसे डायरेक्टली पास कर देता है और यूवी प्रोटेक्टेड लेंस से पास करके यूवी सेंसिटिव सीसीडी कैमरा में ये क्या होता है, रिसीव होता है और इससे एक इमेज बनता है और बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज बनता है। नाउ यहाँ पर कैमरा यूज करते हैं, हम डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते बिकॉज यूवी लाइट क्या होता है, फिजिकल म्यूटाजेन होता है और इसी की वजह से आंख डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये है आपका यूवी लाइट माइक्रोस्कोप। बट यूवी लाइट माइक्रोस्कोप में आप विजिबल
लाइट को भी यूज कर सकते हैं, उस वक्त आपको यूवी लाइट सोर्स को बंद करना पड़ेगा। तो बेसिकली यूवी लाइट सोर्स से आप लाइट जाएंगे ऐसा, यहाँ से लाइट जाएगा, लाइट बेंड होके आपके नीचे की तरफ जाता है। और जब आप यूवी लाइट यूज करते हो तब ये ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज करना पड़ेगा। यूवी ऑब्जेक्टिव लेंस को आप, ये टरेट है, इसे घुमा दीजिए तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस जाके यहाँ आ जाएगा और यूवी ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस से पार होके इस स्पेसिमेन में जाएगा, फिर से बेंड होके आएगा। बट हियर दिस विज बीम स्प्लिटर क्या करते हैं, विजुअल लाइट जो कि स्पेसिमेन में आता है उसे यहाँ पर बेंड कर देता है, और यहाँ पर आप अपना आंख लगाकर ये इमेज देख सकते हो। बट यहाँ में जो इमेज बनेगा, इसका रेजोल्यूशन और इस इमेज के रेजोल्यूशन में बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है। सॉरी, बहुत ही डिफरेंस होता है। यहाँ पर रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, ठीक है। लास्ट हो गया आपका फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। So here, those sample are used, which by putting some fluorescent dye, it will emit some type of fluorescent rays. Okay, क्या होता है आपका, certain chemical compound like fluorescent isothiocyanate that observe UV light, then re-emitted a part of energy of low wavelength of light. ओके, जब भी आप यहाँ पर डाई दोगे तो यहाँ पर लो वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट होगा, जो कि कलरफुल होता है, जिसे हम अगर देखेंगे तो ग्रीन कलर, रेड कलर, फ्लोरेसेंट होगा। तो कोई कोई सेल फ्लोरेसेंट लाइट इमिट करते हैं व्हेनेवर दे अब्सॉर्ब ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। और ये बिकॉज ऑफ द दिस फ्लोरेसेंट फेनोमेनन ऑफ ए पर्टिकुलर सैंपल, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप इज यूज। तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में क्या होता है मैं बता दूं। यहाँ पर लाइट सोर्स होते हैं, लाइट सोर्स के आगे में एक एक्साइटेशन फिल्टर होते हैं जो कि पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को पास होने देते हैं, जो कि यूज होगा ये सैंपल में। ये सैंपल में कुछ डाई यूज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको डीएनए देखना है तो डापी यूज कीजिए, नहीं तो ग्रीन ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन भी यूज करते हैं कुछ और सैंपल देखने में। उसी प्रकार मैंने जो बताया, फ्लोरेसेंस आइसोथायोसाइनेट भी बहुत कॉमनली यूज किया हुआ आपका फ्लोरेसेंट डाई है, तो ये सैंपल में दिया जाता है। नाउ दिस लाइट, फिल्टर लाइट विल स्ट्राइक ऑन द डाइक्रोमिक मिरर। तो ये डाइक्रोमिक मिरर बहुत स्पेशल होता है, बिकॉज ये उस लाइट को बेंड करता है जो कि ये सैंपल में जाना चाहिए, और ये सैंपल ये लाइट को एब्जर्व करके फ्लोरेसेंट लाइट को एमिट करता है। तो ये लाइट को बेंड करके थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस ये सैंपल में जाता है, और ये सैंपल ये लाइट को एब्जॉर्ब करके, यूवी लाइट होता है बेसिकली, ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वो स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करता है। ये यहाँ से पास होके आपका डाइक्रोमिक लेंस में जब जाता है, तो डाइक्रोमिक लेंस इसे बेंड नहीं करता, इसे पास होने देता है। और ये इमिशन फिल्टर से फिल्टर होके ये प्रिज्म में जाता है, और ये आप डायरेक्टली आप थ्रू आईज भी देख सकते हो, या आप इसे कैमरा में भी देख सकते हो। दोनों ही तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ में जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये है डाइक्रोमिक मिरर, जो कि आपका डुअल नेचर दिखाता है। जो यूवी लाइट सोर्स से आता है, इसे बेंड करके सैंपल की तरफ जाने देता है, और एक स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि फ्लोरेसेंट लाइट है, उसे पास करके आप आंख से या कैमरा से देख सकते हो, जो इमिशन फिल्टर से पास होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये है फ्री कॉम्पिटिटिव कोचिंग फॉर पीजी एंट्रेंस एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। किसी और का आप हेल्प करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेरा भी यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जितना भी फ्री टाइम है, इसे आपके सर्विस में मैं यूज करूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दूसरों के बारे में कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचोगे और इसे शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। और जिसको नीड है, जिस जो पैसा नहीं दे सकते बट उनको सीखना है, उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो।